Welcome students. Now topic is antihistaminic agents. Myself Mr. Mohammad Zamiruddin, Assistant Professor in Indira College of Pharmacy, विष्णुपुरी नांदेड़. So dear students, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो ऐड करूं तो आपको वो सबसे पहले मिल जाए. Now today's point is antihistaminic agents. In our previous lecture and video, we have discussed about the histamine, chemistry of histamine, histamine receptors, and the physiological actions of histamine. Now, today we will discuss about the antihistaminic agents. In that, the first we will see the definition of antihistaminic agent. So dear friends, anti means opposite. Okay, wherever the word anti it arises, it means that it is a opposite. Okay, it means it is a opposite. And histamine means histaminic agents means the agents which act on histamine receptors. They are called as histaminic agents. Okay. So here the word antihistaminic agents, it means that these are the chemical compounds or the chemical agents or the drugs which antagonize the effect of histamine on histamine receptor, specifically on H1 receptor. We had seen in previous videos that there are four types of receptor in our body for histamine: H1, H2, H3 and H4. So out of these four receptors, if a drug antagonize or block the effect of histamine on H1 receptor, then these compounds are called as the antihistaminic agents. Now students, in pharmacology you have been learned about the agonist and antagonist. Agonist and the antagonist. Agonists are, what are agonist? So agonist means those compounds which bind with the receptor and initiate the physiological effect or physiological action. They are called as the agonist. तो हमने फार्माकोलॉजी में देखा होगा आपने, या आपने सीखा होगा कि एगोनिस्ट के मीनिंग क्या होते हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स और ऐसे केमिकल एजेंट्स जब वो रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं या रिसेप्टर को बाइंड करते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, या जो भी उसका एक्शन है वो वहाँ पे हमें दिखता है. और इसी का अपोजिट होता है, द अपोजिट ऑफ एगोनिस्ट इज द एंटागोनिस्ट. तो एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट मीन्स दोज केमिकल एजेंट्स और द ड्रग्स विच ब्लॉक, ठीक है, जो ब्लॉक करते हैं, मीन्स जो रोकते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, विच ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट ऑन रिसेप्टर. जो एगोनिस्ट के इफेक्ट को रोक देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट. ओके, सपोज दिस इज द सेल, and here on the cell there is a one receptor. Suppose this is a receptor. Okay, so for our assumption this is a receptor. Now this is agonist. Okay, so this agonist what it do? So this agonist binds with the receptor and it start the physiological effect or action. Okay, now the antagonist, so this is the antagonist, suppose. Okay, now this antagonist what it will do? It will bind to the receptor. Okay, so it will bind to the receptor but it block the effect and it does not initiate the physiological effect on the inside the cell or on the receptor. So this is called as the antagonist. This is called as the antagonist. Okay, so here definition of antihistaminics, they are nothing but they are the antagonist of histamine receptor, particularly H1 receptor. Okay, particularly at the H1 receptor. Now
Second point, mechanism of action of antihistaminic agent. Okay. So what is the mechanism? The mechanism is the same that we have discussed. That is, these antihistamine, they combined with the H1 receptor and block them, और उसको वो ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है. तो इट इज नोन दैट H1 antihistamines effectively antagonize the actions of histamine at H1 receptor. They merely antagonize the effect of histamine on H1 receptor, means somehow they prevent the access of histamine to the H1 receptor. This is clear. Now classification. Now in classification in medicinal chemistry, okay, here we will discuss specifically the chemical classification of the particular topic. Okay, so antihistamines, they are broadly classified into 4 classes. The first is the H1 antagonist with classical structure. Second, H1 antagonist with non-classical structure. Okay, classical means they follow a particular pattern. उनका एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न को वो फॉलो करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्लासिकल स्ट्रक्चर. एंड सेकंड क्लास है एंटागोनिस्ट विथ नॉन क्लासिकल स्ट्रक्चर. उसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई एक सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द नॉन क्लासिकल स्ट्रक्चर. थर्ड, नॉन सेडेटिव H1 antihistamines. Okay, why we are given the name non-sedative? Because the first and second class, this first and second class, it have one side effect, that is a sedation. That is a sedation. Sedation की मीनिंग क्या होते हैं? Sedation means नींद आना, या इसको हम बोलते हैं नॉट डिप्रेशन, नींद आना. उसमें क्या होता है कि पेशेंट को नींद आती है या इट फील ड्राउजीनेस, थोड़ा सा ड्राउजीनेस होता है, या उसको नींद आती है, या नींद आने के जो पहले जो होता है उसको बोलते हैं हम सेडेशन. तो इस सेडेशन में क्या होता है कि पेशेंट का या पर्सन का जो कंसंट्रेशन है वो अटेंड नहीं होता है. मीन्स अगर वो कोई हेवी वर्क कर रहा है या कोई हेवी मशीन पे काम कर रहा है या कोई ड्राइविंग कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ड्राइविंग करते टाइम उसका कंसंट्रेशन अटेंड नहीं होता है. तो इसमें डेंजर है कि अगर वो ड्राइविंग करता है तो देयर मे बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. अगर वो हेवी मशीन पे वर्क कर रहा है तो देयर मे बी चांसेस ऑफ दी मिस हैंडलिंग और सम एक्सीडेंट विल बी देयर. So that's why these patients, they are advised not to work on heavy machines or driving. Okay. So first और second class का साइड इफेक्ट होता है सेडेशन. तो उस सेडेशन को कम करने के लिए थर्ड क्लास जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें नॉन सेडेटिव H1 एंटीहिस्टामिन्स. इन ड्रग का जो ड्रॉबैक्स जो है, फर्स्ट और सेकंड जो ड्रॉबैक्स है वो इसका ड्रॉबैक्स नहीं रहता है, तो इसमें नॉन सेडेटिव टाइप की ये एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स है. फोर्थ इज द इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, मींस जस्ट दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल. ओके, so these are the mast cell stabilizers, means they stabilize the mast cell and they prevent the release of histamine from the mast cell. So this is the 4 broad class of the antihistaminic agent. Now first we will discuss first class, that is H1 antagonist with classical structure. H1 antagonist with classical structure. So in that again there are different subtypes or sub classification or sub chemical classes. First A is the ethylene diamine derivatives. Okay, so dear students, the first class name is ethylene diamine derivatives. Examples are triphenyllamine, then perilamine, then mepiramine and phonzylamines. These are the 4 example of ethylene diamine derivatives. So इसको हमें याद रखना है या इसको हमें रिमेंबर करना है, तो उसके लिए क्या है कि ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें डायअमाइन, डाई मीन्स 2. ओके, डाई के मीनिंग होते हैं 2 एंड अमाइन मीन्स अमाइनो ग्रुप. ओके, मीन्स अमाइंस मीन्स जिस ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर NH2 ग्रुप रहता है उसको हम बोलेंगे अमाइनो ग्रुप्स और अमाइनो कंपाउंड्स. ठीक है, तो कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर या जिसके स्ट्रक्चर में
NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, या फिर NH2 के बजाय उसमें इस तरह भी हो सकता है NR2, वेयर दिस R may be either hydrogen or it may be CH3 means methyl group, or it may be aryl group also. Some rings may also be there. So these are called as the amino. Okay, so ethylene means C2H5. Okay, those alkanes which contain or which have 2 carbon atom, they are called as ethane. Okay, हमें पता है ना अल्केन्स में अगर एक कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे मीथेन. ओके, दिस इज द मीथेन. अगर 2 कार्बन है C2 तो उसको हम बोलेंगे इथेन. ओके, 3 कार्बन अगर रहते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोपेन. प्रोपेन. ओके, 4th कार्बन अगर है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन. इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन. इस तरह से हमने अल्केन का नोमेनक्लेचर दिया हुआ है. तो यहाँ पे इथिलीन की मीनिंग आते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन है, जिसमें 2 कार्बन रहेंगे. तो ये ऐसी क्लास है, ये ऐसी केमिकल क्लास के कंपाउंड्स है जिसमें 2 कार्बन की चेन रहेगा, प्लस साथ में अमाइनो ग्रुप 2 बार रहेंगे, मीन्स ट्वाइस, है ना. तो सपोज ये CH2, ये CH2, ये होगा इथिन. ओके, यहाँ पे रहेगा अमाइनो ग्रुप और यहाँ पे भी रहेगा अमाइनो ग्रुप. तो यहाँ पर ये समझो यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है और यहाँ पर भी R है. तो ये एक अमाइनो ग्रुप हो गया और ये दूसरा अमाइनो ग्रुप. तो दिस इज अ डाई अमाइन और दिस इज द इथिलीन ग्रुप. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे इथिलीन डाई अमाइन डेरिवेटिव्स. Okay, let's see example. First example is ट्राइपेलिनामाइन. So dear students, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स और राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन्स और H1 एंटागोनिस्ट, देन आपको क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन में केमिकल क्लास और उसके एग्जाम्पल्स, और जितने आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं तो उनमें से किसी एक का स्ट्रक्चर आपको लिखना होता है. जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये एग्जाम्पल में ट्राइपेलिनामाइन है, पेरिलामाइन है, मेपिरामाइन एंड थोंजिलामाइन. तो ये हमने 4 एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है. तो हमें इसके सपोर्ट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन चारों में से किसी एक का स्ट्रक्चर और उसका आईयूपैक नेम ये आपको भी लिखना होगा. तो तभी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे. अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ट्राइपेलिनामाइन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं. तो सी, this is the tripelinamine. Now the structure is, this is the structure of tripelinamine. See here, तो tri means 3, है ना, tri means 3. तो यहाँ पे जो है 3 नाइट्रोजन्स है, that's why it is called, it is name is given the tripelinamine. एंड लास्ट में अमाइन है, मीन्स यहाँ पर 1 अमाइनो ग्रुप है या 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका जो केमिकल क्लास है वो इथिलीन डाई अमाइन है. तो इथिलीन कैसा होगा यहाँ पर, तो इथिलीन इस तरह से यहाँ पर कि ये यहाँ पर 1 कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन. ओके, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है. तो ये होगा इथिलीन. तो हमें क्या है, इथिलीन का फार्मूला क्या है, C2. अगर जिसमें 2 कार्बन रहते हैं उसको हम बोलेंगे वो इथिलीन है या फिर इथेन है. ओके, ये क्लियर हो गया. अब ये डाई अमाइन, 2 अमाइंस है. ओके, तो ये 2 अमाइंस कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट अमाइन है NH2 ग्रुप, है ना. तो यहाँ पर ये N है और उसको हमने यहाँ पर R है और ये R है. तो एक्चुअली ये अमाइनो ग्रुप है. ओके, तो जो R का जो मीनिंग है यहाँ पर, R इज इक्वल टू CH3, है ना. दोनों भी यहाँ पर R वो है CH3 है, दिस इज CH3, अल्किल ग्रुप है. ओके, मिथाइल ग्रुप है. तो ये होगा RCH3. तो ये अमाइनो ग्रुप हो गया. तो ये होगा फर्स्ट अमाइनो ग्रुप. अभी इसमें डाई अमाइन है, 2 अमाइनो ग्रुप है. तो सेकंड अमाइनो ग्रुप कहाँ पर है. ओके, नाउ वी विल सी the IUPAC name of this compound. So this is the IUPAC name of tripelinamine. N dimethyl, N phenylmethyl, N pyridine, pyridinyl ethane 1,2 diamine hydrochloride. Okay. अभी ये जो IUPAC नेम दिया हुआ है इससे हम किस तरह से रिमेंबर करेंगे या किस तरह से हम उसको हम याद करेंगे. सी, किसी भी कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड को आईयूपैक नेम अगर असाइन करना है, देना है,
या हमें याद करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पेरेंट मोइटी या पेरेंट स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, और जनरली जो पेरेंट मोइटी जो रहता है वो आईयूपीएक नेम के सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे जो लास्ट में जो आया है वो क्या आया, इथेन डायअमाइन। ओके, इथेन डायअमाइन ये लास्ट में है। तो दिस इज द पेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्राइपेलियन अमाइन, इथेन डायअमाइन। तो हम पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे स्ट्रक्चर में, कहाँ पर है ये, तो इथेन मतलब यहाँ पर हो गया ये इथेन, एंड डायअमाइन तो ये डायअमाइन इस तरह हो गया। ओके, ये डायअमाइन हमने यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो दिस इज द इथेन डायअमाइन। तो अभी हमने ये पेरेंट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना होगा कि इस पेरेंट स्ट्रक्चर को जो भी ग्रुप्स अटैच है तो हमें उसके नंबर के साथ में, नंबरिंग के साथ हमें इसको आइडेंटिफाई करना है या फिर इसको नंबरिंग के साथ हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या ग्रुप अटैच है। तो पहला ग्रुप ये अटैच है अमाइनो ग्रुप, सेकंड ये अटैच है पहला ग्रुप अटैच है मिथिल ग्रुप, और सेकंड ग्रुप भी अटैच क्या है वो मिथिल ग्रुप है। और ये दोनों कहाँ पे अटैच है, ये दोनों अटैच है नाइट्रोजन को। तो हमने क्या लिख दिया उसको एन एन, है ना, 2 मरतबा अटैच है मिथिल ग्रुप, तो उसलिए हमने दिया उसको N, डायमिथिल, N, डायमिथिल, इसको हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसको हमने मेंशन कर दिया। अभी क्या बचा, ये बचा हुआ है दिस स्ट्रक्चर, तो उसको हमने, ये भी कहाँ अटैच है, ये भी अटैच है नाइट्रोजन को, N को। इसको हमने N को अटैच करने के बाद अब ये डायरेक्टली अटैच है ना, तो इसमें भी हमने और 2 इसके कंपोनेंट है ना, एक यहाँ पर CH3 है या CH2 है और ये फिनिल रिंग है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो फिनिल एंड CH2 है, तो हमने इसको मेंशन करना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट में डाल दिया उसको। अब ब्रैकेट में लिखे हमने क्या, फिनाइल मिथिल, है ना, ये फिनाइल हो गया और ये मिथिल हो गया, तो फिनाइल मिथिल आ गया। ठीक है, तो हमने इसका भी नाम मेंशन कर दिया। अभी क्या बचा, अब बचा सिर्फ ये वाला, इसको हमने नाम किया था एन पैरेडिन, है ना, ये भी एन को अटैच है, तो इसके लिए एन, और ये जो रिंग है इसका नाम क्या है पैरेडिन। तो पैरेडिन को हम क्या करेंगे, लास्ट का ई निकाल के YL लगा देंगे, पैरेडिन नाइल। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ओके, तो ये आप चाहे तो लिख सकते, या अगर आप चाहे तो उसको नहीं भी लिख सकते। अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपको मतलब उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे 2 का मीनिंग क्या होता है, 2 का मीनिंग ये होता है कि ये जो पैरेडिन रिंग है तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो सेकंड नंबर के पोजीशन पे है ना। सेकंड नंबर कहाँ से आ गया, ये तो ये आ गया जहाँ से रिंग अटैच होता है उसको नंबर 1 मिलता है हमेशा। ओके, जिस कार्बन से वो पेरेंट मॉलिक्यूल को अटैच है तो वो कार्बन को मिलेगा नंबर 1। और उसके बाद हम नंबरिंग इस तरह से देंगे कि जो उसमें हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज देते अगर है नंबरिंग, तो क्लॉकवाइज नंबरिंग देने के बाद यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन को नंबर 6 मिल रहा है, मतलब ये फिगर ज़्यादा मिल रहा है, तो उसके बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग देंगे। तो इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 5 और इसको मिलेगा 6। तो यहाँ पे जो हेट्रो एटम को नंबर 2 मिल रहा है, इसके लिए हम नंबरिंग देंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है, पैरेडिन ग्रुप नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेडिन 2 पैरेडिन 2 अभी क्या बचा, इसको भी हमने मेंशन कर लिया। अब बचा हमारा सिर्फ पेरेंट स्ट्रक्चर, तो उसका नाम भी हमने इथेन 1,2 भी आप लिख सकते, या फिर आपने, क्योंकि एक जो अमाइनो ग्रुप है फर्स्ट नंबर के कार्बन को अटैच है और जो सेकंड अमाइनो ग्रुप है वो सेकंड नंबर के कार्बन को अटैच है। ओके, तो ये जो है कि अमाइनो ग्रुप कहाँ अटैच है इसमें, तो एक अमाइनो ग्रुप जो है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन को अटैच है और जो सेकंड अमाइनो ग्रुप है वो सेकंड नंबर के कार्बन को अटैच है। तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है और ये सेकंड नंबर का कार्बन है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ हमने इथेन 1,2 डायअमाइन, और ये जो सॉल्ट है दैट इज ए हाइड्रोक्लोराइड। So this is how we will remember the IUPAC name of any chemical compound. I think this is clear. If
यू हैव एनी डाउट, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल्स. Okay, up till now is it clear? No problem. Now come to the next second class. Okay, so this we have seen ethylene diamine derivatives. Okay, now second chemical class is the amino alkyl ether analog. Okay, so amino alkyl ether analogs, which also known as ethanol amines. Okay, examples are diphenhydramine hydrochloride, dimenhydrinate, doxylamine and clemistine. तो ये इसके 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ओके, अमाइनो अल्काइल ईथर के. तो अभी हमें ये सेकंड क्लास है. ओके, तो अब हम देंगे किसी एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर. ओके, अमाइनो अल्काइल ईथर. नाउ कैटेगरी और केमिकल क्लासेस अमाइनो अल्काइल ईथर. तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कंपोनेंट है स्ट्रक्चर के. एक तो है अमाइनो ग्रुप, सेकंड है अल्कील. ओके, मीन्स अल्काइल और अल्कील, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं. और थर्ड है ईथर. ईथर मीन्स व्हाट, ईथर का जो फार्मूला है ROR, यानी कि बीच में R रहेगा, इस साइड में भी एक अल्कील ग्रुप रहेगा और इस साइड में अल्कील ग्रुप रहेगा. ये R जो रहेगा या तो अल्कील भी हो सकता है और इट में भी अराइल है ना, उसमें कोई रिंग भी हो सकता है. तो इसको हम बोलेंगे ईथर. तो ये ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें अल्किल ग्रुप ईथर ग्रुप है, साथ में अल्काइल भी है और अमाइनो भी है. ओके, तो हम देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है. दिस इज डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज व्हाट, ये जो ऑक्सीजन है ये ईथर का ऑक्सीजन हो गया. ओके, हमने यहाँ पर मेंशन किया था ROR. तो ये O आ गया यहाँ पर. अभी क्या बचा R. ये R क्या है, तो ये R जो है एक चेन है, इसको हम बोलेंगे कार्बन का चेन. दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द सेकंड कार्बन. तो ये इथिल और इथाइल इथेन का चेन है. तो ये होगा अल्किल ग्रुप. तो ईथर हो गया और अल्किल भी आ गया. अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ अमाइनो. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है. ओके, यहाँ पे जो सिंगल लाइन रहती है इसका मीनिंग हम लेते हैं हमेशा CH3. ओके, अगर हम इसमें नहीं भी लिखते हैं CH3 तो वो अंडरस्टूड है कि सिंगल लाइन में CH3. ओके, सो हियर द स्ट्रक्चर इज alkyl group is there, sorry ether group is there, alkyl group also there and amino group is there. So it become amino alkyl ether. This amino, this alkyl, okay, and this is the ether. Clear? नाउ डाइफेनहाइड्रामाइन. तो ये जो एग्जांपल है डाइफेनहाइड्रामाइन, तो इसमें डाई मीन्स 2, फिनाइल मीन्स फिनिल रिंग. ओके, सो इसमें 2 फिनिल रिंग है, दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम डाइफिनाइल. तो दिस इज द वन फिनिल रिंग एंड दिस इज द सेकंड फिनिल रिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डाइफिनाइल हाइड्रामाइन. ओके, हाइड्रामाइन. नाउ वी विल सी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सो हियर द IUPAC नेम इज व्हाट, 2-diphenyl methoxy ethyl dimethylamine hydrochloride. So here parent compound or parent structure is what, dimethylamine. This is the parent structure that is identified as a parent structure, dimethylamine. Which one? Okay, so parent structure is actually this is the ethyl dimethylamine. So this is dimethyl. Okay, this one methyl and this second methyl, this amine, and this is the 1 and this is 2 मीन्स इथिल ग्रुप. ओके, तो इथाइल डाइअमाइन. तो ये हमने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया एज ए पेरेंट स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर है पेरेंट स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा पेरेंट स्ट्रक्चर. अब हमें इसको देखना है कि इसमें क्या क्या अटैच है. तो इसमें सिर्फ एक ही अटैच है कि यहाँ तो कुछ अटैच नहीं है, यहाँ कोई अटैच नहीं है, यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं है. तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अटैच है, वो भी क्या है, एक ऑक्सीजन है, एक CH मिथिल ग्रुप है. ओके, और उस मिथिल ग्रुप को एक तरफ फिनिल है और दूसरी तरफ भी फिनिल है, तो मतलब डाइफिनाइल मीथेन होगा. ये डाइफिनाइल मीथेन को हम लिखेंगे मिथो. ओके, और ये O को लिखेंगे ऑक्सी, डाइफिनाइल मिथॉक्सी. तो मिथॉक्सी कहाँ पर अटैच है, सपोज ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 कार्बन है, तो सेकेंड नंबर के कार्बन को डाइफिनाइल मीथो ऑक्सी है ना, डाइफिनाइल मीथो और ये ऑक्सी.
इस तरह से। तो 2 डाइफिनाइल मिथॉक्सी इथिल डाइमिथिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, दिस इज द हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द डाइफिनाइट्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड structure. Is this clear? Okay, now next move third class, piperazine और cyclic basic chain analog. Okay, this is the second third number class जो है वो chemical class है, piperazines और cyclic basic chain. तो either you can remember piperazine analog or you can write cyclic basic chain analog. Okay, examples are chlorcyclazine hydrochloride, मैक्लेजिन एंड बुक्लेजिन या बुक्लाइजिन। सी सभी के नाम में सिमिलरिटी है, लास्ट में जो सभी के अंदर क्या रहा है, LIZINE। ओके, तो क्लोरसाइक्लेजिन, मैक्लेजिन एंड बुक्लेजिन या बुक्लाइजिन, ये उसका तीन एग्जाम्पल्स है। तो अभी हम देखेंगे किसी एक स्ट्रक्चर कंपाउंड का स्ट्रक्चर, क्लोरसाइक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर इज व्हाट। सो बेसिक केमिकल क्लास इज पाइपराजिन। पाइपराजिन क्या होता है, दिस इज द पाइपराजिन रिंग, है ना, ये जो रिंग है 6 मेंबर्ड रिंग विथ 2 नाइट्रोजन एट 1,4 पोजीशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द पाइपराजिन स्ट्रक्चर, है ना, 6 मेंबर्ड रिंग विथ 2 नाइट्रोजन्स एट 1 and 4 पोजीशन। 1 नंबर पे और 4 नंबर पे जो रहेगा उसको हम बोलेंगे 1 and 4 पोजीशन। तो यहाँ पे 1 कौन सा रहेगा, सपोज ये 1 है तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इस तरह से फर्स्ट नंबर पे और उसका पैरा पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन। ओके, तो वहाँ पे जो है नाइट्रोजन रहेगा उसको हम बोलेंगे 1,4 पैरा पोजीशन एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द पाइपराजिन। सो दिस इज द पाइपराजिन स्ट्रक्चर एंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर पाइपराजिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ग्रुप अटैच करके उसको बना दिया हमने क्लोरसाइक्लेजिन। तो क्लोर, इसका नाम भी, इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, प्रेजेंट है। साइक्लेजिन मीन उसमें साइकिल्स है। ओके, तो पाइपराजिन को देख, है ना, तो उसमें 2 साइकिल्स है, उसमें 2 फिनिल रिंग है, मीन्स 2 उसमें साइकिल्स है, और लास्ट में ZINE साइक्लिजिन जो है, तो जीन का हम मीनिंग लेंगे पाइपराजिन का जीन। सो क्लोर साइकिल मीन्स रिंग। ओके, तो क्लोरसाइक्लिजिन, तो इसमें 2 फिनिल रिंग है और बीच में एक मिथिल ग्रुप है। ओके, और यहाँ पर जो है पाइपराजिन स्ट्रक्चर है। चलो देखते हैं इसका हम आईयूपैक नेम क्या होता है। इसका जो आईयूपैक नेम सिंपल सा है, यहाँ पर हमने जो पेरेंट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया हुआ है वो है मिथाइल पाइपराजिन। वो क्या है, मिथाइल पाइपराजिन। तो कौन सा स्ट्रक्चर है, मिथाइल पाइपराजिन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दिया एज ए पेरेंट स्ट्रक्चर, है ना। मिथाइल बोलते यहाँ पर मिथिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये CH3 रहेगा। तो दिस इज मिथिल पाइपराजिन स्ट्रक्चर को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है पेरेंट स्ट्रक्चर। अब इसको जो डायरेक्टली अटैच है वो क्या है, पैराक्लोरो, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है, और क्लोरो ग्रुप कहाँ पर है, ये 4 नंबर के कार्बन को अटैच है। 4 नंबर कैसा आएगा, ये 4 आएगा, मतलब क्योंकि इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं 4 क्लोरो, या इसको हम लिखते हैं पैरा क्लोरो। दिस इज द पैरा पोजिशन, है ना। पैरा पोजिशन क्यों बोलेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ से बेंजीन रिंग जो है इस कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन रहेगा अर्थो, है ना, ये रहेगा अर्थो, ये रहेगा मेटा, और ये रहेगा पैरा पोजिशन। ओके, ये पैरा पोजिशन रहेगा। उसी तरह से सिमिलरली इस साइड में ही देखेंगे हम, इस साइड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर ये आर्थो पोजीशन है और ये भी मेटा पोजीशन है और वो पैरा पोजीशन आ जाएगा। तो इस तरह से क्लोरसाइक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड, तो यहाँ पे हमने नाम क्या दिया, 1 क्यों दिया हमने, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये 1 नंबर का है। ओके, 1, उसके बाद 1 को जो ग्रुप अटैच है वो एक बड़ा ग्रुप है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया ब्रैकेट में लिखे। अब पैराक्लोरो, ब्रैकेट में पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बाहर का जो कंपाउंड होता है, जो ग्रुप अटैच है, जो दूर है, जो अवे है, सेंटर से जो अवे है, पहले उसको मेंशन करते हैं। तो सबसे अवे क्या है यहाँ पर, सपोज ये सेंटर है,
तो इसके अवे में यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है, तो पैरा क्लोरोफिनिल, ये पैरा क्लोरोफिनिल हो गया। तो अब हमने इसको मेंशन कर लिया है। ओके, पैरा क्लोरोफिनिल, तो हमने इसको क्या कर हमने मेंशन कर लिया है। अब क्या बचा, अब सिर्फ ये बचा और ये कार्बन बचा, तो इसको हम नाम देते हैं फिनिल और इसको नाम देंगे CH2 है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं फिनिल मिथाइल, ओके, जिसको हम बोल सकते हैं फिनिल मिथाइल, या फिर इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड है, वो क्या है, बेंजाइल। वो वर्ड क्या है, बेंजाइल। तो बेंजाइल क्या रहता है कि जब किसी भी 6 मेंबर्ड रिंग है ना, फिनिल रिंग को अगर CH2 ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज दी बेंजाइल, BENZYL, बेंजाइल ग्रुप। तो ये दोनों को हम बोलेंगे बेंजाइल। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, 1 नंबर के जो नाइट्रोजन है उसको ब्रैकेट में ले लिया हमने पैरा क्लोरोफिनाइल, फिर इधर बेंजाइल ब्रैकेट क्लोज्ड, क्योंकि हमने इसका पूरा स्पेसिफाई कर दिया है। अभी क्या बचा, 4 को क्या है, ये 4 नंबर का कार्बन है, दिस इज द 4 नंबर कार्बन। 4 को क्या अटैच है, 4 को अटैच है मिथिल ग्रुप, तो 4 मिथाइल पाइपराजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो दिस इज द आयुपेक नेम ऑफ द क्लोरसाइक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। नाउ 4th क्लास, प्रोपिल अमाइन एनालॉग्स, प्रोपिल अमाइंस। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन की चेन रहेंगी जिसमें 3 कार्बन होंगे, है ना। एक नंबर का कार्बन, एक कार्बन अगर रहता है तो हम मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन रहते हैं तो ईथेन बोलेंगे, 3 कार्बन अगर रहते हैं तो हम बोलते हैं उसको प्रोपेन। तो प्रोपिल अमाइंस, तो ये कैसा स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर कि CH2 और यहाँ पे रहेगा अमाइनो ग्रुप इस तरह से, और यहाँ से ये अटैच हो सकता है किसी और को, अगर यहाँ पे अटैच नहीं है तो ये हो जाएगा फिर CH3, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहेगा इसको हम बोलेंगे प्रोपिल अमाइन चेन, प्रोपिल अमाइन चेन। अब उसके एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल देखिए, फेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइन माइलिएट, ये इसका सॉल्ट है, ब्रोमफेनिरामाइन, ट्राइप्रोलिडिन एटसेट्रा, एंड ट्राइप्रोलिडिन एटसेट्रा। तो ये इसके 4 एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं उसका एक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है क्लोरफेनिरामाइन का, सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरफेनिरामाइन। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो प्रोपिल अमाइन साइड चेन कहाँ पर है, प्रोपिल अमाइन साइड चेन। तो दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन एंड दिस इज 3rd कार्बन, ये होगा प्रोपिल स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द अमाइनो ग्रुप, दिस इज व्हाट, अमाइनो ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर होगा प्रोपिल अमाइन साइड चेन, ओके। अब प्रोपिल अमाइन स्ट्रक्चर, अब इस पेरेंट स्ट्रक्चर को क्या अटैच है, एक तरफ अटैच है क्लोरोफिनिल, ये कौन सी पोजीशन पे है क्लोरो, है ना, ये क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे ये जो क्लोरो है कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो 2nd रिंग है उसका नाम क्या है, पायरिडीन, उसका नाम है पायरिडीन। तो एक तरफ से ये अटैच है पायरिडीन को और एक तरफ से अटैच है ये फिनिल और क्लोरीन के ग्रुप को, ठीक है। चलो देखते हैं इसका हम आयुपेक नेम क्या हो सकता है। इसका जो आयुपेक नेम हो गया 3 क्यों लिया पर हमने, क्योंकि ये 3 नंबर के कार्बन को अटैच है, इसके लिए हमने 3 लिया। अब 3 नंबर का जो कार्बन है उसको 2 ग्रुप अटैच है, तो हमने यूज़ किया यहाँ पर ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट ले लेंगे। अब ब्रैकेट के बाद सबसे पहले हमने इसको मेंशन करेंगे, इस साइड वाले को मेंशन करेंगे, ओके। तो हम पहले हम मेंशन करेंगे इस साइड वाले को, तो इसका नाम क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल, है ना, क्योंकि ये 4 नंबर पे अटैच है ना, तो ये नंबर 1 आएगा, इसको नंबर 2 आएगा, इसको नंबर 3 आएगा, तो इसको नंबर 4 आएगा। तो ये 4 नंबर के कार्बन को क्लोरो ग्रुप अटैच है, इसके लिए इसको नाम दिए 4 क्लोरोफिनाइल। दिस इज क्लियर, ये इसको हमने मेंशन कर लिया। अभी क्या बचा, NN डाइमिथाइल, कहाँ पर आया, ये वाला NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथिल, ओके। 2 पैरिडिनाइल, 2 पैरिडिनाइल कहाँ पर है, ये वाला है ना। ये 2 मतलब क्यों लिखे यहाँ पर हमने, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है वो 2nd नंबर पे प्रेजेंट है ना, ये 1st नंबर आएगा तो ये 2nd नंबर आएगा, ओके। 2 पैरिडिनाइल, 1 प्रोपेन अमाइन, 1 प्रोपेन अमाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको नाम दिया। तो ये NN डाइमिथिल, तो ये एक डाइमिथिल है और ये डाइमिथिल है। उसके बाद 3 2 पैरिडिनाइल, 1 प्रोपेन अमाइन, है ना। 1 क्यों लिखे यहाँ पर,
क्योंकि जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है वो कहाँ पर है, वो फर्स्ट नंबर के कार्बन के ऊपर अटैच है अमाइनो ग्रुप, इसके लिए हमने नाम दिए 1 प्रोपेन अमाइन। इस तरह से हमने आयुपेक नेम लिखा हुआ है क्लोरोफेनेरामाइन का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास 5th नंबर क्लास जो है वो है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स, फिनोथायाजिन्स। ओके, उसके एग्जांपल्स है प्रोमिथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड ट्राइमीप्राजाइन टार्ट्रेट, ये 2 एग्जांपल दिए हुए थे उसके। तो अभी हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर किसी एक कंपाउंड का। तो यहाँ पर हमने लिया स्ट्रक्चर है प्रोमिथाजाइन का, प्रोमिथाजाइन। केमिकल क्लास का नाम क्या है, केमिकल क्लास का नाम है फिनोथायाजिन। तो फिनो मतलब फिनिल ग्रुप, फिनो मतलब क्या है, फिनिल ग्रुप। थाया मतलब ऐसा रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, तो उसको हम लिखते हैं थाया मतलब सल्फर। ओके, और ओके 6 मेंबर्ड रिंग, तो उसके नाम के लास्ट में रहता है INE। ओके, ये रहेगा नाम के लास्ट में INE। जितने भी 6 मेंबर्ड के रिंग होते हैं तो उनके नाम के लास्ट में क्या रहेगा, INE। जैसे फॉर एग्जांपल पैरिडीन, देन पैरिमिडीन। तो इस तरह से जितने भी 6 मेंबर्ड के रिंग होते हैं उनके लास्ट में रहता है INE। तो यहाँ पर लिखा हुआ है थायाजिन। तो थायाजिन का मतलब क्या होगा कि इसके स्ट्रक्चर में एक सल्फर है और एक एजा मीन्स नाइट्रोजन। ओके, थाया मीन्स सल्फर, एजा मीन्स नाइट्रोजन। तो ऐसा 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके एक जगह पर सल्फर है और सेकंड जो पोजीशन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन भी है। तो एक ही रिंग के अंदर सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, तो उसको बोलेंगे थायाजिन्स। ओके, तो फिनोथायाजिन मतलब फिनिल रिंग एक रहेगा, साथ में उसके अटैच रहेगा सेकंड रिंग जिसके अंदर एक सल्फर ग्रुप रहेगा और एक नाइट्रोजन ग्रुप रहेगा, तो उसको बोलेंगे फिनोथायाजिन स्ट्रक्चर। तो अभी हम देखते हैं उसमें पहला जो एग्जांपल है प्रोमिथाजाइन है ना, इसका जो एक्चुअली ये मिसप्रिंट हो गया है, मिस टाइप हुआ है, प्रोमिथाजाइन है इसका मीनिंग है। ओके, प्रोमिथाजाइन, दिस इज नॉट प्रोमिथाजाइन, दिस इज द प्रोमिथाजाइन, दिस इज प्रोमिथाजाइन। Okay, now we will see structure. This is the structure of the promethazine. See, pheno means phenyl groups. Okay, तो हमने यहाँ पर बोला था कि इसमें एक फिनिल ग्रुप रहेगा, तो एक्चुअली इसमें 2 फिनिल ग्रुप है, दोनों साइड में 2 फिनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए इसको हमने बोले फिनो। तो दिस इज 1 फिनिल ग्रुप एंड दिस इज द सेकंड फिनिल ग्रुप। नाउ जो बीच का जो रिंग है, मिडल रिंग, उसके अंदर सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, तो इसको बोलेंगे अपन थाया। सल्फर मीन्स थाया। ओके, सल्फर के मीनिंग होते हैं, या हम उसको नॉमेनक्लेचर लिखते हैं थाया, एंड नाइट्रोजन को लिखते हैं एजा। ओके, एजा मीन्स नाइट्रोजन एंड सल्फर, थाया मीन्स सल्फर। तो फिनोथायाजिन्स। अब इस रिंग को, ये तो रिंग का नाम हो गया, अब इसको क्या अटैच है, इसको यहाँ पर अटैच है, ये दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH3। ओके, और यहाँ पे रहेगा CH3 और यहाँ पर भी क्या है, वो है CH3 है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें कितने कार्बन की चेन है, 1, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन की चेन है जिसमें से सेकंड कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो हम देखते हैं इसका आयुपेक नेम क्या होता है। इसका जो आयुपेक नेम है NN डायमिथिल। N कहाँ पर है, ये N है, इसको 2 ग्रुप अटैच है, इसके लिए हमने नाम दिया इसको N, 2 मरतबा है, इसके लिए 2 मरतबा आएगा N, डायमिथिल 1 फिनोथायाजिन। ओके, 1 को क्या ग्रुप अटैच है, फिनोथायाजिन है ना, दिस इज द 1 फिनोथायाजिन प्रोपेन अमाइन। तो ये जो है ना प्रोपेन होगा, 3 मतलब प्रोपेन है और ये अमाइनो ग्रुप। तो प्रोपेन अमाइन का हमारा जो पेरेंट स्ट्रक्चर जो है प्रोपेन अमाइन है, तो प्रोपेन अमाइन के अंदर एक साइड में अटैच था फिनोथायाजिन ग्रुप और सेकंड साइड में अटैच थे 2 मिथिल ग्रुप, इसके लिए हमने नाम दिया इसको N, डायमिथाइल 1 फिनोथायाजिनाइल प्रोपेन 2 अमाइन। 2 इसलिए लिखे हमने क्योंकि वो सेकंड नंबर के कार्बन को अमाइनो ग्रुप अटैच है, इसके लिए हमने नाम दिया इसको प्रोपेन 2 अमाइन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्लास, दैट इज ए 6 नंबर की जो क्लास है उसका नाम है डायबेंजोसाइक्लोहेप्टेन्स। डायबेंजोसाइक्लोहेप्टेन्स
इसमें दो एग्जांपल है, सिप्रोहेप्टाडीन एंड एज़ाटाडीन. We will see the structure of ciproheptadine. So this is the ciproheptadine. This is the 3 cyclic ring है ना, उसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 साइकिल्स है. फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड रिंग. तो इनमें से फर्स्ट रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड है, सेकेंड जो रिंग है वो 7 मेंबर्ड है. ओके, सेकंड क्या है वो 7 मेंबर्ड है. और थर्ड रिंग भी कौन सा है, थर्ड रिंग भी जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है. तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं 6,7-6-7-6. ये पैटर्न में 3 ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है. जो हमने पहले देखा अभी वो कैसा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी 3 रिंग्स हैं, 3 रिंग्स, बट ऑल रिंग्स आर 6 मेंबर्ड. ये 6-6-6, ये इस तरह के पैटर्न में है 6-6-6. और ये जो पैटर्न है इसको हम बोलेंगे, दिस पैटर्न इज 6-7-6. इस तरह से एक और पैटर्न आता है जिसमें क्या होता है, 6 रहता है तो मिडल रिंग है वो रहता है 5 मेंबर्ड, और फिर यहाँ पे रहता है 6 मेंबर्ड. तो 6-5-6. तो इस तरह का भी क्या होता है, पैटर्न आता है. ओके, तो हमने अभी तक 3 पैटर्न देख लिए, 6-5-6, 6-6-6 और 6-7-6. तो जो सिप्रोहेप्टाडीन है इसका जो पैटर्न क्या है वो 6-7-6 पैटर्न में है. ओके, अगर आप देख लेंगे तो उसमें 6-7-6, उसमें और भी जो एग्जांपल आते हैं इसके बहुत सारे उसमें एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे आगे कौन कौन से. उसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बोल के क्लास है एंटी साइकोटिक ड्रग के अंदर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उसमें भी बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं. इसमें ट्राइसाइकिल मीन्स 3 साइकिल्स उसमें होते हैं, इसके लिए उसका नाम दिया ट्राइसाइक्लिक. सो हियर द सिप्रोहेप्टाडीन, इसका जो आईयूपैक नेम है एकदम सिंपल है, व्हाट इज दैट, 4 ब्रैकेट में 5H. ये जो 5H आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर उसको आप नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा. डाइबेंजो है ना, तो हमने इसका जो केमिकल क्लास का नाम क्या है, डाइबेंजोसाइक्लो. डाइ मीन्स 2, बेंजो मीन्स बेंजील रिंग. ओके, एंड साइक्लो, तो इसमें 2 बेंजीन रिंग है और साइक्लो मतलब एक और एक रिंग है. इस तरह से वो 3 मेंबर्ड के रिंग्स है. तो डाइबेंजो मीन्स 2 बेंजीन ग्रुप है. यहाँ पे A और D दिया हुआ है. इसके मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि A फेस और D फेस. तो जो 6 मेंबर्ड का रिंग जो है उसके अगर हम फेस गिनते हैं तो ये A हो गया, ये B फेस हो गया, ये C हो गया और ये D फेस हो गया. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एक जो रिंग है वो A फेस को अटैच है, मतलब उसमें जो कार्बन्स है वो कॉमन है, और एक जो बेंजीन रिंग है सेकंड वाला, दूसरा जो बेंजीन रिंग है वो डी फेस को अटैच है. इस तरह से लिखते हैं उसको AD. देन एन्यूलिडीन. ओके, एन्यूलिडीन 1 मिथाइल पाइपरिडीन हाइड्रोक्लोराइड. तो मिथाइल पाइपरिडीन कौन सा होगा, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइपरिडीन. ओके, एंड दिस इज द 1 मिथिल पाइपरिडीन. तो यहाँ पर एन्यूलिडीन तो एन्यूलिनाइलिडीन ये उसका नाम दे दिए हमने. तो 4 डायबेंजो एन्यूलिनाइलिडीन 1 मिथाइल पाइपरिडीन हाइड्रोक्लोराइड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिप्रोहेप्टाडीन. Ciproheptadine actually, वो this is not heptadine, this is heptadine. Okay, now next class. So here the first class, that is a H1 antagonist with classical structure, it is finished. Now second class, that is H1 antagonist with non-classical structure. So only 2 examples are there, that is azelastine and estimazole. Okay, these 2 are the examples of antagonist with non-classical structure. Now we will see the structure of estimazole. So this is the structure of estimazole.
कोई इसमें पैटर्न नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ये नॉन क्लासिकल स्ट्रक्चर है, तो इसे आपको रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा। किस तरह से याद करेंगे आप? इसमें अगर आप देखते हैं इसमें राइट लेफ्ट साइड में, तो दिस इज द फ्लोरो बेंजिल या फिनिल ग्रुप है, दिस CH2 है, और यहाँ पर ये जो रिंग है बेंज इमिडाजोल रिंग है ना, ये बेंजीन है और ये इमिडाजोल रिंग है, तो ये होगा बेंज इमिडाजोल, इसको हम बोलेंगे बेंज इमिडाजोल। जैसा आप देख रहे हैं नाम के अंदर कि एस्टीमाइजोल, तो नाइजोल के अंदर क्या है यहाँ पर OLE है, इसका मतलब ये है कि इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है ना, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, तो ये बेंज इमिडाजोल रिंग है। तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप अटैच है, फिर इसको पैरिडीन स्ट्रक्चर अटैच है, और यहाँ पर CH2 दो इथीन है ना, इथाइल ग्रुप अटैच है, ये फिनिल ग्रुप है, और उसके बाद ये मिथॉक्सी टर्मिनल ग्रुप है, मिथॉक्सी CH3 एंड O, तो इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी टर्मिनल ग्रुप। तो इस तरह से इसका मतलब स्ट्रक्चर है। अगर आप नाम देखते हैं IUPAC नेम, तो जो पेरेंट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है वो है बेंज इमिडाजोल अमाइन, है ना। कहाँ पर ये? तो पेरेंट जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है वो ये है बेंज इमिडाजोल अमाइन। तो ये बेंज इमिडाजोल अमाइन इतना स्ट्रक्चर है ना, बेंज इमिडाजोल एंड अमाइन। अब इसको जो जो ग्रुप अटैच है, तो पहले हम देखेंगे अगर, तो 1 नंबर के ऊपर ओनली क्या अटैच है 4 फ्लोरो बेंजाइल, है ना, दिस इज द बेंजाइल ग्रुप, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप CH2 के साथ में। तो 4 फ्लोरो बेंजाइल वो खत्म फिनिश हो गया। अभी सेकंड साइड में क्या है यहाँ पर N को साइड में जो अटैच है वो क्या है N1, 1 के अंदर फिर से ब्रैकेट आगा 2, 2 के अंदर फिर से एक ब्रैकेट आगा 4, 4 को जो अटैच है 4 मतलब ये पैरा पोजीशन, ठीक है। तो मिथॉक्सी फिनाइल खत्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज, पहला ब्रैकेट खत्म हो गया, फिर ये क्या बचा इथिल, ये इथाइल लगा, फिर से ब्रैकेट क्लोज, और बचा फिर 4 पाइपरिडिनाइल, तो ये पाइपरिडिनाइल ग्रुप है इसलिए 4 पाइपरिडिनाइल, ये भी फिनिश हो गया। अभी क्या बचा खाली पेरेंट स्ट्रक्चर, ये पेरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया, दैट इज ए 1H बेंज इमिडाजोल 2 अमाइन। 1H नहीं भी लिखे तो आप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जस्ट राइट द बेंज इमिडाजोल 2 अमाइन, और अमाइन भी लिखे तो आप चलेगा, 2 नहीं भी लिखे तो उसमें अंडरस्टूड है। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द एस्टीमाइजोल। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो थर्ड क्लास है वो है नॉन सीडेटिव H1 एंटी हिस्टामाइंस। तो इसमें जो है सेडेशन नहीं रहेगा इस ड्रग को, उसका हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। उसके फिर 2 क्लासेस है, सब क्लासिफिकेशन में 2 क्लासेस है। नंबर 1 पाइपराजिन डेरिवेटिव्स, अगेन सेम क्लास दैट वी हैव सीन इन द फर्स्ट क्लास, दैट इज H1 एंटागोनिस्ट विद क्लासिकल स्ट्रक्चर। तो पाइपराजिन के अंदर एक ही एग्जांपल है सिट्रिजिन, एंड सेकंड केमिकल क्लास का नाम है पैरिडीन एंड पाइपरिडीन डेरिवेटिव्स, उसमें जो एग्जांपल्स है लोराटिडीन, फिक्सोफेनाडिन, टर्फेनाडिन एंड एक्रिवास्टिन। ओके, तो ये लेटेस्ट जो ड्रग्स जो मार्केट में अभी यूज़फुल है, जो एंटीहिस्टामिनिक एज ए एंटीहिस्टामिनिक जो वर्क कर रहे हैं, तो उसमें पॉपुलर जो है वो सेट्रेजिन है, देन लोराटिडिन है, फिक्सोफेनाडिन है एंड टर्फेनाडिन। ओके, तो इसमें से हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिया हुआ है सेट्रेजिन का, तो सेट्रेजिन का जो केमिकल क्लास का नाम क्या है पाइपराजिन, तो इसमें पाइपराजिन रिंग रहेगा, मीन्स देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। दिस इज पाइपराजिन रिंग, कहाँ पर है ये, यहाँ पर पाइपराजिन स्ट्रक्चर है। तो इस पाइपराजिन स्ट्रक्चर को जो ग्रुप अटैच है, इधर से फिनिल ग्रुप है, इधर से क्लोरोफिनाइल है, पैराक्लोरोफिनाइल, और यहाँ पर क्या है दिस इज COOH, है ना, ये C है यहाँ पर COOH, तो ये एसिड ग्रुप हो गया, और ये CH2 है, ये ईथर ग्रुप हो गया, और यहाँ पर ये CH2 और ये भी CH2, इस तरह से। चलो देखते हैं इसका हम IUPAC नेम क्या होगा। तो उसका जो IUPAC नेम है, पेरेंट जो कंपाउंड और ग्रुप आइडेंटिफाई किया हुआ है वो है एसिटिक एसिड। वो क्या है एसिटिक एसिड, इथॉक्सी एसिटिक एसिड। कहाँ पर इथॉक्सी एसिटिक एसिड, ये वाला। तो दिस इथाइल ग्रुप, दिस ऑक्सी एंड दिस CH3COOH। तो ये जो पेरेंट हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है एज ए पेरेंट ग्रुप। अब इस पेरेंट ग्रुप के अंदर
सेकंड नंबर के जो कार्बन है उसको अटैच है, ये पूरा ग्रुप अटैच है, तो उसको हमने बड़ा ग्रुप है इसके लिए हमने ब्रैकेट दिया, फिर ब्रैकेट दिया 2, फिर उसके बाद हमने फिर एक ब्रैकेट दिया, उसके बाद और एक ब्रैकेट है और यहाँ पर आएगा क्लोरोफिनाइल, दिस इज क्लोरोफिनाइल, पहला ब्रैकेट क्लोज, फिर फिनाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मिथाइल, ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर पाइपराजिनाइल, पाइपराजिन 1 ईल या फिर 1 को नहीं भी लिखे चलेगा, पाइपराजिनाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया और बचा वहाँ पर इथॉक्सी, इथॉक्सी लास्ट में, फिर एसिटिक एसिड। इस तरह से इसको आईयूपैक नेम दिया हुआ है सेट्रिजिन को। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड लोराटाडीन, ये स्ट्रक्चर है लोराटाडीन का। तो अगेन दिस इज द ट्राइसाइक्लिक रिंग विथ 6 7 6, ये फॉर्मेट में दिया हुआ है जस्ट लाइक ए सिप्रोहिप्टाडीन। ओके, ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर जो है पायरिडीन रिंग रहेगा और यहाँ पर फिर दिस इज द COO CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है और यहाँ पर जो रिंग है दिस इज द पायरिडीन रिंग। तो चलो देखते हैं इसका नाम क्या है। तो आईयूपैक नेम अगर आप देखेंगे तो 4 ब्रैकेट में 8 क्लोरो, ओके, 8 क्लोरो, 5,6 डाईहाइड्रो, 5,6 डाईहाइड्रो, बिकॉज इसको हम जब नंबरिंग करेंगे तो इसको आएगा 8 नंबर, ये आएगा 5 और ये रहेगा 6। तो हमने देखा था प्रीवियस स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड था, है ना, 5 और 6 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड को हमने रिमूव कर दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखे 5,6 डाईहाइड्रो, 5,6 डाईहाइड्रो बेंजो, ओके। 5,6 अगेन क्यों है, साइक्लोहेप्टा, साइक्लोहेप्टा 1,2B पायरिडीन, 11 लिडीन, पाइपरिडिनाइल कार्बोक्सिलेट डाईइथाइल, कार्बोक्सिलेट डाईइथाइल। तो ये स्ट्रक्चर है और आईयूपैक नेम है लोराटाडीन का। देन नेक्स्ट लास्ट क्लास, दैट इज अ inhibition of histamine release, that is a mast cells stabilizer, in that example is cromolyn sodium. Thank you.